So good morning everyone. Today is 19th of January and here we are in class 8 with computer. So first of all I would like to ask you guys if you have any kind of problem or any kind of confusion with computer, you can ask me right now and after that I will start my class. You have 2 minutes for it. No one? No doubt? Yeah. No, sir. Okay. So you are Anuradha Tiwari. Okay. Dog दिखा है इधर दिखा है. Okay. Let me see the messages if there are any. Are you guys able to see my screen? Okay, no messages are there. So are you guys able to see my screen? What I am putting here? Yes, Okay, very good. yes, sir. Very good, beta. So here you can see your book is here at this screen and as well as your screen. So here I have solved all these topic I think, and we are on visual basic if I am correct. Am I right? Sir, last time we decided to teach another chapter. Which was Photoshop. Shall we start Photoshop? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Photoshop? Okay. So let us start with the Photoshop. Because Photoshop I think is omitted from Yes, the sir. syllabus, but I teach you about the Photoshop. So first of all, let us move to the page number 120. So here I will tap and type 120 so that I can reach to the first page of Photoshop. So first of all, who want to read? Just raise your hand. Raise your hand who want to read. Tanu Singh. Okay, beta. Tanu Sir, Singh. may I Shreya, but I can't raise my hand. Okay, Shreya, you can continue and after that Tanu. Okay? Shreya, from here you have to read. Let me minimize it. From here to here. Okay, just read it very well. Shreya, go ahead and read it if you are able to see the screen. Yes, sir. Yeah. Adobe Photoshop, or simply Photoshop, is a graphic editor software developed and published by Adobe System. It allows you to create, modify, combine, and optimize digital images. You can then save the image to print, share via email, publish online, or view on a handheld device such as an iPod or smartphone. You can use Photoshop's paintbrush, airbrush, and pencil tools to apply colors or patterns to your images. After selecting its pixels, you can also fill your selection with solid or semi-transparent colors. You can brighten and change the hue, shape of the color and parts of the image with Photoshop's dodge, burn and similar tools. Photoshop's effects let you easily add drop shadow, 3D shading and other styles to your images. After you edit your work, you can use your images in many ways. Photoshop lets you print your images, save them in a format suitable for use on a web or prepare them for use in a page layout program. Very good, beta. I think while reading this, you have got some knowledge about the Photoshop. But let me explain you once again, line by line. Okay? So in first line we have Adobe Photoshop, or simply Photoshop, is a graphics editor software developed and published by Adobe System. So इसको some people call as Adobe and some people say Adobe. Both are the correct pronunciation. You can pronunciate it Adobe as well as Adobe. It's all up to you. So Adobe Photoshop or simply Photoshop is a graphics editor software. तो कैसा सा प्रोग्राम होता है बेटा, जो कि आपके ग्राफिक्स को एडिट करता है. ग्राफिक्स बोले तो क्या, ग्राफिक्स बोले तो इमेज, जो आपकी इमेज होती है ना बेटा, इमेज, वीडियो, इस तरह की चीजें दिखा, जिसको क्या कहते हैं, ग्राफिक्स का. तो क्या कहते हैं, ग्राफिक्स को एडिट करने का प्रोग्राम होता है. ठीक है. इट अलाउज यू टू क्रिएट, मॉडिफाई, कंबाइन एंड ऑप्टिमाइज डिजिटल इमेजेस. तो क्या करता है, ये इमेजेस के ऊपर वर्क करता है. कैसे वर्क करता है, क्या क्या कर सकता है, आपको क्रिएट कर सकता है, नई इमेज बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो बाय ऑन योर, और क्या कर सकते हो बेटा, बाय ऑन यू कैन क्रिएट
मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन मॉडिफाई आल्सो, यू कैन कंबाइन टू इमेजेस एज वेल एज यू कैन ऑप्टिमाइज डिजिटल इमेज इन डिफरेंट मैनर। ऑप्टिमाइज का क्या मीनिंग होता है, हु विल टेल मी अबाउट द ऑप्टिमाइज, किसी को पता है ऑप्टिमाइज का मीनिंग, सही है सुनो, पता ऑप्टिमाइज का मतलब, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो जो हमारे पास फोटो होती है, हर फोटो का हम अलग जगह यूज करते हैं। कुछ फोटो होती है जो आपके व्हाट्सएप पे लगती है, व्हाट्सएप की डीपी में लगाते हो आप लोग। कुछ फोटो ऐसी होती है जो आप क्या करते हो, अपने पास हाई क्वालिटी में स्टोर करके रखते हो। कई फोटोज ऐसी होती है जिसको आपको प्रिंट करवाना होता है या प्रिंट आउट निकाल के लगाना होता है। कई सारे पोस्टर होते हैं, कई सारे बैनर होते हैं ना बेटा। अब तुम ये सोचो, अगर हमारे पास लो क्वालिटी इमेजेस है, लो क्वालिटी इमेज मतलब इसकी क्लियरिटी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी इमेज है। अब इस लो क्वालिटी इमेज का अगर हम बैनर बनाएंगे, बड़ा सा बैनर, खूब बड़ा सा बैनर बनाएंगे जो कि रोड पे लगना है, तो क्या होगा, इसके पिक्सल फट जाएंगे। इतना पता चल रहा है ना, सबको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, जहां नहीं आ रही तुरंत टोकना मुझे। तो क्या होगा, अगर लो क्वालिटी इमेज होगी, इसको हम जूम करेंगे तो क्या होगा, इसके पिक्सल फट जाएगा और हम जो प्रिंट आउट निकालेंगे क्या होगा, बहुत ही बेकार होगा, मीनिंगलेस होगा कि नहीं बेटा, बोलो या सुनो, चीजें समझ में आ रही ना? Yes, sir. ओके, तो होगा क्या बेटा कि जब आपके पास ऐसी इमेजेस हैं जिसकी क्वालिटी कम है, जिसमें हमें क्या करना है, उसको अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना है, या तो उसकी क्वालिटी को डाउन करना है, क्या करना है, क्वालिटी को इंक्रीज करना है। दोनों ही काम आप फोटोशॉप से हो सकते हैं। मतलब कि ये कि अगर आपको मान लो कोई फोटो है जिसका प्रिंट आउट निकालना है, तो उसको क्या करोगे, आप हाई क्वालिटी में निकालोगे। और कोई फोटो अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है किसी को, तो आप क्या करोगे, उसकी साइज कम कर लोगे, है कि नहीं। व्हाट्सएप 100 MB की इमेज 100 MB अलाउ करता है मैक्सिमम। अब मान लो आपकी इमेज क्या है, आपकी इमेज ज्यादा बड़ी है, कुछ भी इसको कम करके भेजना है, या आपको 1000 फोटोज भेजनी है। अब सोचो 1000 फोटो सब 100 MB की, मतलब 10 लाख MB, 1 लाख MB, तो 1 लाख MB आप खर्चा थोड़ी करोगे। इसलिए क्या करोगे, आप इसको कंप्रेस करना चाहोगे, इसका साइज कम करना चाहोगे। लेकिन साइज कम करते समय आप क्या चाहोगे, साइज कम करते समय हम ये चाहेंगे कि उसकी क्वालिटी कम ना हो, केवल क्या कम हो उसका, केवल उसका साइज कम हो। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एडोब फोटोशॉप। उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज, कि अपने अकॉर्डिंगली इन चीजों को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. you can then save the images to print। आप प्रिंट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो, या फिर आप उसे एक हैंड डिवाइस लाइक आईपॉड और स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैं आपको कोई फोटो भेजूं कि बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब फोटो क्लियर ही ना हो, एकदम घटिया क्वालिटी में दिख ही नहीं रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, इसको हम फोटोशॉप के थ्रू उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है। आप लोग को एक बात और बता दूं छोटी सी, जनरली जो आपके रोड पे कैमरास लगे रहते हैं या जो CCTV कैमरा होते हैं वो 5 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं। कितने के बेटा, 5 मेगापिक्सल मैक्सिमम। ठीक है, अब आप कहोगे सर 5 मेगापिक्सल का, सुन के हंसोगे कि ये कैसा कैमरा हुआ। आपको मोबाइलों में जो कैमरा आते हैं आजकल 108 MP तक के आते हैं कि नहीं बेटा, 108 मेगापिक्सल आता है ना बेटा। Yes, sir. मेगापिक्सल क्या होता है, सब ये कॉन्सेप्ट पता है सबको। मेगापिक्सल मैंने बताया होगा कभी ना कभी, नहीं बताया तो बताओ, फिर से बता दो। मेगापिक्सल समझते हो, बोलो, या तो आता होगा तो नहीं आता होगा, अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो बताएंगे, बोलो आता है मेगापिक्सल किसी को, सही है सो नो, सिंपली बता दें। ठीक है, देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो ना बोलना गुनाह है, बोलना गुनाह नहीं होता। जब आप कोई चीज सीखने आए हो, यहाँ पे आप क्या हो, क्लास में अटेंड कर रहे हो, सुबह से जब करके बैठे हो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ये नहीं सोचने के लिए हमें बेइज्जती हो जाएगी, नहीं आता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ सीखने आए हो, बोलना जरूरी है, तुम गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो, आपको दब्बू नहीं बनना है। दब्बू समझते ना कौन होता है, दब्बू समझते हो नहीं, जल्दी बताओ। हाँ, जो अच्छी बात समझते, दब्बू उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी बातें नहीं रख पाता, जो अपनी बात नहीं बोल पाता। तो ऐसा तो बनना नहीं है, हम किसी को डांटते मारते तो है नहीं। अदर टीचर्स का तो मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों को कभी ना डांटता हूँ ना कभी ऐसा कुछ पनिशमेंट देता हूँ कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा वैसा करूंगा। हाँ, बदमाशी कर दो तब जरूर गुस्सा आती है, तो बदमाशी अलग चीज हो गई और क्यूरियोसिटी अलग चीज हो गई। तो आप अपनी चीजें पूछो, जो डाउट है वो आप पूछो, आप अपने पॉइंट्स रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ सुबह सुबह उठ करके क्लास ज्वाइन किए हो, सुबह से पढ़ रहे हो,
इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ मेगापिक्सल आपको नहीं पता तो तुरंत बोलो सर मेगापिक्सल मुझे नहीं पता, आप समझाइए, तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया आप मेगापिक्सल मुझे तो मैं बताऊंगा, अभी कोई यहाँ पे बोल दे कि सर HTML में क्या होगा, तो मुझे गुस्सा लगा कि मैं HTML तो पढ़ा नहीं रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, फोटोशॉप पढ़ा रहे हैं, फोटोशॉप से रिलेटेड चीजें पूछो, ठीक है, समझ लो ना बात को। तो बदतमीजी नहीं करनी है, फालतू के नर्गल क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं जो कि टॉपिक रिलेटेड हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको। चलो हम बताते हैं आपको मेगापिक्सल। जो भी आपकी फोटोज होती हैं वो हर फोटो आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जब आप इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखो इसको जब मैंने जूम किया तो आप देख पा रहे हो कि ज्यादा जूम करने के बाद आपको ऐसे स्क्वायर स्क्वायर छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे होंगे। ध्यान से देखो जूम करके अपने स्क्रीन पे भी तो कुछ एक छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे, स्क्वायर फॉर्मेट दिखेंगे। देखो इसको जूम आउट करने देखो, दिख रहा है ना स्क्वायर जैसा, जो बाद में क्लियर हो रहा है, जो बाद में क्लियर हो जाता है। Yes, sir. ये जो छोटे छोटे होते हैं ना बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको Yes, sir. स्क्वायर को क्या कहते हैं, पिक्सल। क्या कहते हैं बेटा, पिक्सल, PIXCL। मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिक्सल। मतलब पिक्स मतलब क्या, पिक्चर, ये मतलब एलिमेंट, यानी पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। तो जो भी आपकी पिक्चर होती है, जो भी आपकी फोटो होती है, जो भी आपकी इमेज होती है, इमेज किससे मिलकर बनती है, ये इमेज बनती है पिक्सल से मिलकर। किससे मिलकर बेटा, पिक्सल से मिलकर, ठीक है। पिक्सल क्या करता है, किसी इमेज को ड्रॉ करता है। जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, ढेर सारे पिक्सल हो जाते हैं, 10⁻⁶ पिक्सल हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, मेगापिक्सल। 1 किलोपिक्सल एंड मेगापिक्सल। तो हाउ मच पिक्सल आर देयर, कितने ज्यादा आपके मोबाइल में आपके फोटो में पिक्सल है, उसकी क्वालिटी कितनी होगी, उतनी अच्छी होगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. ओके। सेम है आपकी प्रिंटिंग का भी होता है। मान लो आप एक मार्केट में प्रिंटर लेने गए तो एक प्रिंटर आपका आएगा 2000 का, एक प्रिंटर कितने का आएगा, एक प्रिंटर आपका आएगा 2000 रुपए का, और एक आएगा 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है, ये भी प्रिंटिंग कर रहा है, वो भी प्रिंटिंग कर रहा है। हम 2000 का नहीं खरीद लेंगे, हम क्यों 2 लाख का खरीदेंगे। लेकिन क्या है, जो 2 लाख का प्रिंटर होगा, जो आपका 2 लाख का प्रिंटर होगा वो क्या होगा, वो जो 2 लाख का प्रिंटर होगा वो आपका प्रिंटर, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी सुपर डुपर हाई होगी। क्या होगी, बहुत हाई क्वालिटी का होगा। हाई क्वालिटी का मतलब क्या, मतलब कि ये कि जो प्रिंटिंग करेगा वो फास्ट होगी। पहली बात तो फास्ट ही नहीं होगी, फास्ट होने के साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी क्या होगी, हाई क्वालिटी की होगी। हाई क्वालिटी बोले तो हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी पिक्सल्स हैं, जो आपकी पिक्चर्स है, जो उसकी क्वालिटी है, कंटेंट है, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। प्लस जो उसकी पिक्सल्स होंगे, क्या होंगे, पिक्सल ज्यादा होंगे। यानी कि आपके पेज में, आपका जो पेज इसमें प्रिंटिंग आप कर, उसके क्या होगा, छोटे छोटे स्पॉट होंगे, उसको क्या कर देगा, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा, क्या होगा, आपको HD क्वालिटी इमेज प्रिंट होके मिलेगी। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके बेटा, जो हम आज बता रहे हैं ना, जो पिक्सल एंड हाई क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना बेसिक को जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ABCD नहीं आता है और मैं आपको सीधे एक्टिव पैसिव बेस डायरेक्ट बताने लगूं तो आपको समझ में आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। आपको क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले इंग्लिश का बेसिस जानना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये कंप्यूटर की बेसिक्स है, ठीक है। चलो, यू कैन यूज फोटोशॉप पेंट ब्रश। क्या यूज कर सकते हैं, पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल। 3 चीजें हो गई, पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल्स यूज्ड टू अप्लाई। क्या होता है, क्या क्या होता है, देखो आपके पास 3 टूल होते हैं। क्या नाम होता है, एक का नाम होता है पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल टूल टू अप्लाई कलर और पैटर्न टू योर इमेजेस आफ्टर सेलेक्टिंग इट्स पिक्सेल्स। तो क्या होगा, देखो आगे ना हमें पिक्सल, अभी आपको पिक्सल के बारे में ना पता होगा तो आपको समझ में आता है कि पिक्सल क्या होता है, बोलो बेटा। अगर अभी आपको ना पता होता कि पिक्सल क्या होता है तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या लिखा है पिक्सल, देखो इसलिए मैंने आपको बताया। यानी जब आपका फोटोशॉप होता है, इसमें पेंट ब्रश का यूज करते हैं। हाँ बोलो Sir, what is the meaning of airbrush? बेटा, ये नेम होता है। आपका नाम क्या है बेटा, Sir, Johnny. जोनी कुमारी। ओके जोनी बेटा,
जैसे आपका नाम है ना, तो वैसे ये क्या है, जैसे टूल्स के लिए है। अब इस टूल्स को यूज कैसे करते हैं ये हम आगे आपको सिखाएंगे। अभी बस आप नाम जानते रहो। इसमें कितने टूल्स होते हैं? सिर्फ 3 टूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल टूल्स। ये क्या है? ये टूल्स होते हैं। इसका हम लोग ने केवल नाम रखा है, ठीक है। इसका हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टू अप्लाई कलर्स, तो इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं किसी भी कलर को अप्लाई करने के लिए, किसी भी पैटर्न को अप्लाई करने के लिए, टू योर इमेजेस, किसी पैटर्न को बनाने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पिक्सल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी हम जहां हम चाहते हैं क्या हो, जहां चाहते हैं कि उसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पिक्सल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन आल्सो फिल योर सिलेक्शन विद सॉलिड और सेमी ट्रांसपेरेंट कलर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जितना हमने सिलेक्शन किया उसमें हम सॉलिड कलर बना सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन, कुछ भी बना सकते हैं, या जो भी हम चाहें सेमी ट्रांसपेरेंट, आधा ब्लू या पूरा ब्लू, कुछ भी हम कर सकते हैं। ऑल टूल्स के उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं बात? आप क्या कर सकते हो? उसको अलग अलग कलर से उसके पैटर्न को फिल कर सकते हो। दूसरी जगह पे दूसरे पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है। You can brighten, darken and change the hue of color in parts of your images with Photoshop. Okay, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप अपने इमेज को ब्राइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? उसमें चेंजेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको चेंज कर सकते हो ह्यू को, HUE। ये HUE क्या होता है? ये किस खेती में भी होती है? HUE का मतलब होता है ह्यू, मतलब शेड, मतलब कि रेड कलर जो है कितना डार्क रेड है, आपका जो लाइट ग्रीन है कितना ग्रीन है, ठीक है। जो आपके कलर्स है, कलर्स कितने ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं उसको ह्यू कहते हैं। इसका शेड कौन सा है, ठीक है। मान लो मैंने एक फोटो खींची तोते की। तोता क्या होता है? जो तोता समझते ना, पैरेट। पैरेट जो होता है बेटा, पैरेट लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है लाइट ग्रीन, ओके। बट मेरे को क्या करना है? मुझे उसकी ग्रीननेस से संतुष्टि नहीं मिली, मैं क्या चाहता हूँ? मैं और ग्रीन कर दूँ। तो अगर मैं इस पिक्चर के, इस पैरेट की पिक्चर का अगर मैं ह्यू, HUE, क्या बेटा? HUE ह्यू इंक्रीज कर दूंगा तो पैरेट क्या हो जाएगा? मेरा पैरेट लाइट ग्रीन से क्या हो जाएगा? डार्क ग्रीन होता चला जाएगा, जितना मैं ह्यू को बढ़ाता जाऊंगा। और जितना मैं ह्यू को कम करूंगा क्या होगा? मेरा पैरेट उतना ही लाइट ग्रीन होता जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. तो दिस इज द यूज ऑफ ह्यू। ह्यू क्या करता है? आपको कलर को मैनेज करने के लिए यूज करता है कि आप किसी कलर में कितना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? फोटोशॉप के थ्रू आप कई सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं जो कि आपके ड्रॉपी, बर्न एंड इस तरह के सिमिलर टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। चलो, फोटोशॉप में जो इफेक्ट होते हैं बहुत ही इजीली बहुत इजीली ऐड किए जा सकते हैं। जैसे कि शैडो आप ऐड कर सकते हो, 3D शेडिंग ऐड कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? आप और भी तरह के स्टाइल्स अपने इमेजेस में इंक्लूड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप चाहते हो वैसा उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आफ्टर यू एडिट योर वर्क you can use your images in many ways. Photoshop lets you print your images, save them in a format suitable for use of the web or prepare them for use in page layout program. तो आप क्या सकते हो? फोटोशॉप में आपने फोटो तो बना ली। आपने क्या किया बच्चा? फोटोशॉप में फोटो तो बना लिया आपने, फोटो आपकी बन गई, बहुत सही। अब फोटो आपकी बन गई, क्या करोगे? अब उसको आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट करोगे तो क्या होगा? कई सारे साइज होते हैं ना बेटा, पासपोर्ट साइज फोटो, फुल पेज फोटो, कई सारी चीजें होती हैं। तो आप कैसे उसको करोगे? उसके लिए क्या होता है? इसमें कई सारे पेज लेआउट दिए होते हैं। पेज लेआउट दिए होते हैं तो आप फोटो को सेलेक्ट कर दो, हमें क्या निकालना है? A4 निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फोटो को क्या करेगा? A4 साइज में निकाल देगा। या फुल पेज फोटो चाहते हो तो उसमें भी निकाल देगा। इतने में किसी को डाउट हो पूछो। किसी को डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, सो अब कौन आगे पढ़ेगा? तनु सिंह, आर यू देयर? तनु सिंह, तनु आर यू देयर? तनु सिंह, Yes, sir. बेटा आपकी वॉइस कट रही है। Yes, sir. बेटा आपकी वॉइस कट रही है। अमृता, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, beta, you should try to read from here. Photoshop tool. Sir, कहाँ तक? Your images तक.
Photoshop tools. Photoshop's tools let you move, color, stylize, and add text to the elements of your image. Understanding pixels. Digital images in Photoshop are made up of tiny, solid color squares called pixels. Selecting pixels. To edit specific pixels in your image, you first have to select them by selection tools. Painting image. You can apply color to pixels after selecting them by paintbrush and airbrush. Adjusting color. You can brighten, darken, and change the HUE of colors in parts of your image with Photoshop's dodge burn and similar tools. Applying effects. You can easily add drop shadows, green border, 3D shading, etc. to your images. Applying filters. Photoshop's filters can make your image look like an impressionist painting. Sharpen or blur your image or distort your image in various ways. Adding text. Photoshop's type tools make it easy to apply titles and labels to your images. ओके बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। बट बेटा आज हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 7 मिनट बाकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें 11:52 हो रहा है एंड टिल 12 क्लासेस देयर, सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन कवर ऑल दिस टॉपिक, बट आई विल ट्राई टू लेट यू नो अबाउट दिस सिंपल थिंग्स इन द इमेजेस। आप लोग इसको समझ जाओ। पहले तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग पिक्सल्स। आपको पिक्सल्स को समझना होगा। देखो फोटोशॉप का जो है क्या कर सकता है, आपको मूव, कलर, सेंटर, स्टाइलिंग एंड टेक्स्ट को भी ऐड करने का ऑप्शन आपको देता है। सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग पिक्सल्स। डिजिटल इमेज इन फोटोशॉप आर मेड अप ऑफ टिनी सॉलिड कलर स्क्वायर कॉल्ड पिक्सल्स। पिक्सल में किसी को प्रॉब्लम है क्या? पिक्सल समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, पिक्सल्स मतलब जब ढेर सारे पिक्सल मिल जाएंगे तो क्या कहते हैं, पिक्सल्स क्या देते हैं। सिंगल पिक्सल क्या होता है, सिंगल पिक्सल यानी एक पिक्सल, और पिक्सल्स मतलब ढेर सारे पिक्सल। ओके, इट्स अ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड ओनली। देन सिलेक्टिंग पिक्सल्स। आप पिक्सल्स को सिलेक्ट कैसे करते हो? जब भी आपको कोई इमेज एडिट करनी होती है, जब भी आपको कोई इमेज एडिट करनी होती है तो एक्चुअली आप इमेज के क्या करते हो, आप इमेज के पिक्सल को एडिट करते हो। ठीक है, आप इमेज को नहीं एडिट करते, आप इमेज के पिक्सल को एडिट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप उसमें पिक्सल को एडिट करने के पहले उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपको कंप्यूटर की कॉपी पे ब्राउन पेपर नहीं येलो पेपर चढ़ाना है। ठीक है, ब्राउन पेपर नहीं येलो पेपर चढ़ाना है। इन डैट केस आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे कंप्यूटर की कॉपी को। मान लो 2 कॉपी बनाई तो पहले कंप्यूटर कॉपी निकालोगे, ब्राउन पेपर हटाओगे, क्या चढ़ा दोगे, येलो पेपर चढ़ा दोगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जहां पे आपको एडिट करना है, जहां पे आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम वे आपकी फोटोशॉप में भी होता है। टू एडिट स्पेसिफिक पिक्चर इन योर इमेज, आपकी इमेज उसमें कुछ चीजों को चेंज करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट देम बाय सिलेक्शन टूल। तो आप चीजों को सिलेक्ट कैसे करोगे, सिलेक्ट करोगे किसके थ्रू, सिलेक्शन टूल के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, सिलेक्शन टूल के थ्रू। क्लियर यहां तक? Yes, sir. Okay, so that's all for today. Now you can ask me your doubt because only 5 minutes are there. As you can see 11:55 is there. So I will not explain the third one, painting image. I will start from this by my next lecture. So that's all for today. You can ask me your doubt now.